जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 4 श्लोक 35। यज्ज्ञातवान् पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिस अवस्था के प्रकाश में चित्त निर्भय होकर पर ब्रह्म में पूर्णतः लीन हो जाता है, वह अवस्था जब प्राप्त हो जाए तब हे भाई अर्जुन, तुम स्वयं अपने आप के सहित भूत मात्र को मेरे स्वरूप में ही अखंड रूप में देख सकोगे। हे पार्थ, जिस समय सद्गुरु की कृपा होगी उस समय इस ज्ञान प्रकाश का प्रभात होगा और अज्ञान का अंधकार दूर हो जाएगा। लौकिक सूर्य तो उदय होकर अस्त भी होता है और उसके अस्त होने पर फिर अंधकार हो जाता है, परंतु यह ज्ञान सूर्य एक बार उदय होने पर फिर कभी अस्त होता ही नहीं। इस स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष का अहम भाव सर्वथा नष्ट हो जाता है। उस समय उस योगी की परमात्मा से पृथक सत्ता नहीं रहती, केवल एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही रह जाता है। O Arjuna, once you acquire this knowledge of the self from Sadguru, you will not be again subject to confusion or ignorance. You will behold or directly cognize through internal experience or intuition that all beings of the entire creation, all world of objects, as nothing other than his own self, which is nothing other than the Paramatman. Real knowledge leads to unity, ignorance to diversity. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम। अध्याय 4 श्लोक 35। जेव्हा ही स्थिती प्राप्त होते त्याच्या प्रकाशात मन पूर्णपणे निर्भय होऊन पूर्णपणे परमात्म्यात लीन होते, तेव्हा हे बंधू अर्जुना, तू स्वतः माझ्या स्वरूपात स्वतःसह सर्व भूतांना अखंड स्वरूपात पाहू शकशील। हे पार्थ, सद्गुरूंच्या कृपेच्या वेळी ज्ञानाचा प्रकाश उगवेल आणि अज्ञानाचा अंधकार दूर होईल। सांसारिक सूर्य उगवतो आणि मावळतो आणि मावळल्यावर तो पुन्हा अंधकारमय होतो, परंतु हा ज्ञानाचा सूर्य एकदा उगवला की पुन्हा कधीही मावळत नाही। ही स्थिती प्राप्त झालेल्या व्यक्तींचा अहंकार पूर्णपणे नष्ट होतो। त्यावेळी त्या योगीचे भगवंतापासून वेगळे अस्तित्वच राहत नाही, फक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्मच उरतो। जय गुरुदेव। నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ ప్రసంత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాజీ మహారాజ్ వారి ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 4 జ్ఞానయోగము శ్లోకము 35। యజ్ఞాత్వా నమ పునర్మోహ ఏవం యాస్యసి పాండవ ఏన భూతాన్యశేషేణ ద్రక్ష్యస్యాత్మ నిధోమయీ। ఏ స్థితి యొక్క ప్రకాశముచే చిత్తము నిర్భయత్వము నుండి పరబ్రహ్మయందు పరిపూర్ణంగా లీనమవుతుందో, ఎప్పుడు అట్టి స్థితి ప్రాప్తిస్తుందో అప్పుడు ఓ అర్జున, నేను నీతో పాటే సమస్త భూతములను నా స్వరూపమునందే అఖండముగా కాంచగలవు। ఓ పార్థ, ఏ సమయాన సద్గురుని కృప కలుగుతుందో ఆ సమయాన ఈ జ్ఞాన ప్రకాశం ఉదయించి అజ్ఞానాంధకారం దూరం అవుతుంది। ప్రాపంచిక సూర్యుడు ఉదయించి అస్తమిస్తాడు, సూర్యుడు అస్తమించినంతనే తిరిగి అంధకారం ఆవరిస్తుంది, కానీ ఈ జ్ఞాన సూర్యుడు ఒకసారి ఉదయించిన తరువాత తిరిగి ఎన్నడూ అస్తమించడం అనేదే జరగదు। ఇట్టి స్థితి లభించిన పురుషుని అహంభావము శాశ్వతంగా నశించిపోతుంది। అట్టి సమయమున ఆ యోగికి పరమాత్మ కన్నా భిన్నమైన వేరైన శక్తి ఏది ఉండదు, కేవలము ఒకే ఒక సచిదానంద పరబ్రహ్మమే
మిగిలి ఉంటుంది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 4 ശ്ലോകം 35 യജ്ഞാത്വാ പുനർമോഹമേവം യാസ്യസി പാണ്ഡവ യേന ഭൂതാന്യശേഷേണ ദ്രക്ഷ്യസ്യാത്മന്യയോ മയി. മനസ്സ് നിർഭയമായി പരമാത്മാവിൽ പൂർണ്ണമായും ലയിച്ചു ചേരുന്ന അവസ്ഥ കൈവരിക്കുമ്പോൾ സഹോദര അർജുന, നീ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ദുഷ്ടശക്തികളെയും സ്വയം നിനക്ക് എൻ്റെ അഭേദ്യമായ രൂപത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. അല്ലയോ അർജുന, സദ്ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയുണ്ടാകുമ്പോൾ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം ഉദിക്കുന്നു, അജ്ഞതയുടെ ഇരുട്ട് നീങ്ങുന്നു. ലൗകിക സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഇരുട്ടാക്കുന്നു. എന്നാൽ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയർന്നാൽ ഒരിക്കലും അസ്തമിക്കുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിയ വ്യക്തിയുടെ അഹംഭാവം പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ആ സമയത്ത് ആ യോഗിക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് ഒരു അസ്തിത്വവുമില്ല. സച്ചിദാനന്ദകൻ ബ്രഹ്മം മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्ययो मयि. जय अवस्था के प्रकाश में चित्त निर्भय भकर पर ब्रह्म में पूर्ण रूप से लीन भ जाए. ओई अवस्था के प्राप्ति भ गेला पर हे भाई अर्जुन, अहाँ अपन अस्तित्व सहित सब भूत मात्र के एक हमर स्वरूप में अखंड रूप से देखा लागब. हे पार्थ, सद्गुरु कृपा जखन होइत अछि, ओहि काल में ई ज्ञान प्रकाशक प्रभात फूटैत अछि आ अज्ञानक अन्हार दूर भ जाइत अछि. लौकिक सूर्य त उदय होइत अछि आ फेर अस्त सेहो होइत अछि, आ ओकर अस्त भेला पर अन्हारो फेर घेर लैत अछि. मुदा ई ज्ञान सूर्य एक बेर उदित भ गेला पर फेर कखनो अस्त नहीं होइत अछि. एहि अवस्था में पहुँचल पुरुषक अहम भाव पूर्णतः नष्ट भ जाइत अछि. ओहि समय ओ योगी के परमात्मा से फराक अपन आर कोनो सत्ता नहीं रहि जाइत अछि. मात्र एकटा सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही शेष रह जाइत छथि. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.